Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 9 chapter number 2 poem Wind. Okay, so as per we all know that wind is a natural phenomenon, and in this poem the poet talks to the wind. Yes, the poet talks to the wind, and the power of the wind has been described, and the poet says that wind is a destructive as well as it will be a constructive also. He has linked the destructive power of the wind to the adversities of life. Means the distraction मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर का मतलब होता है कि किस तरीके से विंड जो है वो अपनी पावर से कितनी चीजों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है उनको. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव जो बोला गया है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्गर है तो वो कैसे स्टे रह सकता है उसके अंदर. ठीक है, so he said that the power of the wind to the adversities of life, and says that the weak people break down but the stronger people emerge out of adversities and stay stronger. And the poem gives us an important message. What the important message? That this poem is inspire us to face the challenges and the hardship with the courage, grit, and firm determination. Wind is a symbol of problems and obstacles which are to dealt with without fear. And we must be friend with the wind. It means we must be a friend with our difficult situations to we cop out from this hard situations. Okay, so we have to be determined about our works, and we have to be a strong person. Okay, so let's start our poem. So the poet name is Subramaniam Bharti, and this poem is translated from a Tamil by A.K. Ramanuj. ठीक है, Subramaniam Bharti, he born on 1882 and died on 1921. He is a great Tamil poet and famous for his patriotism in the pre-independence era. Okay, and A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet, and he is well known for his translation of classical and modern poetry. Okay, so let's start our poem. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun means होता है किसी का मजाक उड़ाना. Weakling means the person who is very weak. तो इन लाइनों में poet क्या explain कर रहा है? Wind की destructive power यहाँ पे explain कर रहा है. He asked to the wind. He asked means क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बार बार उनसे बात कर रहा है. बात कर रहा है means वो नॉन लिविंग थिंग को, पर्सन को क्या यहाँ पे शो कर रहा है? एज अ पर्सन वो यहाँ पे उनसे विंड से बात कर रहा है. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? पर्सोनिफाइड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज की जा रही है. He asked the wind to come softly. So he is saying that the wind should not be very strong. It should be very soft. उसे बहुत soft होना चाहिए. Then he says that the wind is very powerful. It's destructive also. इसने क्या किया है? सारे विंडो के शटर्स को ब्रेक कर दिया है, पेपर्स को सारे स्कैटर कर दिए, इधर उधर बिखेर दिए हैं. And he also throw the books डाउन फ्रॉम द शेल्फ से नीचे उसने बुक्स को भी गिरा दिया है. सो वेन एवर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, ऑल थिंग्स आर वीक. लाइक जैसे कि स्मॉल प्लांट्स, टाइनी छोटे बच्चे हो गए, ये सारे जब भी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो ये सब क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, ये गिर जाते हैं, इनको चोट भी लग जाती है काफी बार. सो इनिशियल पार्ट के पोएम में क्या बोला गया है कि विंड जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह सॉफ्टली सॉफ्टली अगर आती है तो एवरीबडी लव्स हिम. ओके, एंड देन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इसका डिस्ट्रक्टिव पार्ट दिखाया गया है. जैसे कि क्या, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ, उसने शटर्स को तोड़ दिया है, विंडोज के पेपर्स को स्कैटर कर दिया है. तो यहाँ पे उसको विंड को एक चाइल्ड नहीं बल्कि एक यंग बॉय या यंग गर्ल की तरह लिया गया है, जो कि फुल ऑफ एनर्जी होता है, वायलेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस के होता है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वायलेंस एंड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन जिसके अंदर होता है. तो उसने सब कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दिया है. मतलब विंड को पर्सन की लाइफ स्टेजेस के साथ यहाँ पे मैच किया गया है. ओके, then frail cumbering house
crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling herds. So crumbling means होता है falling, ठीक है, कुछ भी चीज को मतलब या फिर उस चीज की वजह बनना जिससे क्या हो जाती है, टूट जाती है कोई चीज, ठीक है। राफ्टर्स का मतलब होता है स्लोपिंग बीम जो होती है, जो कि रूफ को सपोर्ट करती है बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग बार बार रिपीट किया गया है ताकि उस वर्ड पे स्ट्रेस दिया जा सके, जो बता रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्ग विंड के कारण क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज जो है वो टोटली क्रम्बल हो गई है, जो खराब हो गई है, जो टूट गई है। तो यहाँ पे बार बार राइटर क्या बोल रहा है, जब विंड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो क्या करती है, सारी चीजों को ब्रेक कर देती है। वो हाउसेस को ब्रेक कर देती है, गिरा देती है, डोर्स को ब्रेक करके गिरा देती है, जो वीक डोर्स होते हैं, ठीक है, जो बीम्स होती है रूफ के ऊपर जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट करती हैं, उनको भी गिरा देती है, वुडन स्ट्रक्चर्स को गिरा देती है, ठीक है, सारे लोग जो कि वीक लोग हैं उनको भी गिरा देती है, एनिमल्स, लाइव्स, हर्ड्स, मतलब इन सारी चीजों को वो क्या कर देती है, उसके डिस्ट्रक्टिव टाइम जो होता है, मतलब जब वो बहुत तेज आती है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। एवरीथिंग जो भी वीक होती है वो सब क्या हो जाती है, गिर जाती है, और क्या हो जाती है, इन सारी एडवर्सिटीज को जो कि बार बार विंड के कारण आ रही है, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, वो उसको फेस नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे पोइट जो है वो सीधा सीधा क्या बोलना चाहता है, दैट पोइट यहाँ पे बोल रहा है कि whenever a weak person faces any challenges in their life, he breaks down and falls. वो टूट जाते हैं, वो जल्दी से बिखर जाते हैं, वो मतलब उन चैलेंजेस को, लाइफ के चैलेंजेस को फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। The wind god winnows and crushes them all. तो यहाँ पे विनोज का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, विनोइंग प्रोसेस जो होती है जिसमें क्या होता है, ग्रेन को हस्क से अलग किया जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि विंड गॉड मतलब होता है कि पवन देवता जो है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पावरफुल गॉड जो है, विंड गॉड जो है, उन्होंने विनो किया, मीन्स क्या किया, यहाँ पे वीच और पीपल्स को क्या किया गया है, एक जैसा बताया गया है, मतलब जिस तरीके से ग्रेन से शेफ को अलग किया जाता है वीट वाले में, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे गॉड विंड गॉड जो है उसने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग पीपल्स और जो वीक पीपल्स हैं उनको भी क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो वो वीक पर्सन्स जो होती हैं वो गिर जाते हैं, मतलब वो संभाल नहीं पाते अपने आप को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को। तो विंड गॉड बता रहे हैं यहाँ पे कि विंड गॉड जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे विनोइंग की प्रोसेस भी कर रहा है, स्ट्रॉन्गर और वीकर पर्सन्स को सेपरेट भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। He won't do what you tell him. So come, let's build a strong home. Let's join the door firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. Steadfast का मतलब होता है firm. Firm मतलब बहुत ही कठोरता से, बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि चलो हम उनको फ्रेंड बना लेते हैं विंड को, ठीक है। विंड को फ्रेंड बनाना मतलब अपने जितने भी लाइफ के चैलेंजेस हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनका हंस के सामना करना, अपनी प्रॉब्लम्स को रोने की बजाय उनको प्रॉब्लम्स को सुन के उनके सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देना, ठीक है। तो वो बता रहा है कि प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस, प्रॉब्लम्स तो हमें सुनेंगे नहीं, सो दे विल कम, वो तो आती जाएंगी, तो हमें ही क्या करना होगा, हमें ही प्रिपेयर रहना होगा। और इस प्रिपरेशन में हमें क्या करना होगा, हमें अपने विंड जो है, विंड को आप रोक नहीं सकते हो, तो इसलिए हमें क्या करने होंगे, अपने घर को स्ट्रांग बनाना होगा, अपने डोर्स जो है हमारे घर के उनको अच्छे से फर्मली, बहुत ही टाइटली उसको बंद करना होगा ताकि विंड उसके अंदर ना आ सके। सो हमें क्या करना है, वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडीज स्ट्रांग, आवर हार्ट्स स्ट्रांग to face these challenges in our life, and then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. अगर हम अपने आप को अगर अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं तो फिर कोई भी चैलेंजेस जो है वो हमारे लिए क्या नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे। वी विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम, जो हमारे लिए कोई भी ट्रबल कर सकते हैं ऐसा हमें कभी भी फील नहीं होगा। The wind blow out weak fires. He makes strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि विंड जो है वो अगर कंपेयर किया जाए, ही इज कंपेयरिंग द विंड टू गॉड, ठीक है। विंड को भगवान से कंपेयर किया है उसने, और वो बोल रहे हैं कि विंड अगर भगवान है, वी प्रेज विंड एवरी डे, हमें भगवान की तरह विंड को हमेशा प्रेज करना चाहिए। ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज वी गेट फिनिश्ड ऑफ इन द फेस ऑफ दिस
strong wind, okay, and all the things that are strong flourish and grow to become stronger. तो उन्होंने क्या बोला है, कोई भी चीज जो कि वीक है तो वो क्या होती है, थोड़ी सी भी हवा आती है उससे वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है। लेकिन जो स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग फायर भी अगर देखा जाए तो स्ट्रांग फायर भी होता है या स्ट्रांग पर्सन भी जो होगा वो इन सारी चीजों से क्या होता है, और भी ज्यादा स्ट्रांगर बनता जाता है अपने लाइफ के चैलेंजेस से। ही इज गिविंग अस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life. We should make ourselves physically and mentally strong to face these challenges. And once we are strong enough, we will overcome all the challenges and we will become friends and then we will be happy that we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. तो यही सारी चीजें हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या होना है, जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हमें उनको सोच के या फिर उनके बारे में सारा दिन सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जस्ट उनको प्रेज करना है कि हाँ ये चैलेंजेस है हमारी लाइफ में, इसी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पाए। ठीक है, तो अभी लेट्स मूव करते हैं, इसके कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है। सो लेट्स डिस्कस इट। सो इसमें ये एंटायर पोइम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइम स्कीम इसमें यूज नहीं की गई है। राइम स्कीम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था किस तरीके से हम लोग राइम स्कीम को देखते हैं। ठीक है, इसमें एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। लिटरेरी डिवाइस मीन्स होता है फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें यूज की गई है। ठीक है, तो एनाफोरा यूज की गई है स्टार्टिंग के 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, यानी कि 2, 3, 4 लाइन्स में, जो कि डोंट से शुरू हुई है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, लाइक दैट। ओके, 2, 3, 4 जो लाइन्स है उसमें डोंट के साथ वो एनाफोरा स्पीच इसमें यूज हुई है। लाइन 6, 7, 8 में यू मतलब यूज हुआ है स्टार्टिंग के उसमें, तो वो भी बार बार रिपीट हुआ है, तो ये एनाफोरा इसमें यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था कि विंड को बार बार जो पॉइंट है वो बार बार यू आर गिविंग दिस, यू आर डिड दिस थिंग, वॉट एवर यू आर डिड, तो वो क्या कर रहे हैं, विंड को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहा है, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है। रिपीटेशन यूज हुआ है, बार बार क्रम्बलिंग वर्ड यूज हुआ है, क्रम्बलिंग हाउसेस, यू क्रम्बल द डोर्स, यू क्रम्बल द सॉल्स, राफ्टर्स, लाइक दैट। ओके, बार बार क्रम्बलिंग यूज हुआ है तो वो रेपिटेशन वर्ड यूज हो गया। ठीक है, एलिट्रेशन यूज हुआ है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स को बार बार कनेक्ट किया गया है, मतलब उसमें क्लोज कनेक्शंस में कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट हुआ है, जैसे विंड, विनोज, ओके, वांट, वांट। ठीक है, तो ऐसे करके। और इसमें सिंबलिज्म मींस इसमें क्या किया गया है, सारी थिंग्स को जो रेफर किया है किसी चीज के साथ, मतलब विंड जो है उसको एज अ सिंबल लिया गया है और इस विंड को अपने लाइफ के चैलेंजेस के जैसा उसमें सिंबलाइज किया गया है। और विंड को अपनी लाइफ की जो एडवर्सिटीज होती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, उससे रिलेटेड इसको किया गया है, सिंबल विंड को यूज किया गया है इसमें, तो सिंबलिज्म यूज होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स में मूव करते हैं। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा? So when the wind blows violently, it destroys everything. It breaks the shutter of windows, scatters the paper, throws the book down from the shelves, tear their pages, and bring along a lots of rain. Second है, what does the poet say the wind god winnows? Wind god winnows क्या करते हैं? तो मैंने आपको बताया था weak and stronger persons को winnow करने का काम करते हैं. So the wind god winnows means that the nature shift the weak things from the strong ones. Everything that is weak is tossed by the powerful wind and get destroyed. Just like the winnowers separate the grain of wheat from the chaff, similarly the wind god separated the weak from the strong. Okay. Third questions, what should we do to make friends with the wind? So we must make ourselves strong to face the violent wind. When we will be strong, the wind will not harm us. Instead, it will become a friend and help us to grow and flourish. Next one, what do the last 4 lines of the poem means to you? So the last 4 lines of the poem carry an important message that the strong people emerge stronger and victorious in the face of adversities or the challenges, and we must make ourselves strong like a burning fire which grows and flourish in the violent wind, and we also prosperous in the face of challenges. Okay, that's all in your chapter. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you so much.